Hey everyone, welcome back with another Achiever Club interview. With me, Abhijit Jaju is on the interview today. Abhijit is an interior expert and he has been part of our automation program. And when he showed the kind of systems he had created, it literally blew away my mind. So today's interview is dedicated to all the interior designers and interior experts and people who are working in the construction industry. Let's take the inspiration and let's hear from the Abhijit directly the story, the automation which he has done for his business. Welcome, Abhijit. Thank you, Kevalji. Thanks a lot. So, Abhijit, why don't you introduce yourself? Sure. Hello, everyone. My name is Abhijit Jaju, and we have a company named Exclusive Interiors Private Limited. We are based out of Pune, and we have operations in other cities like Mumbai, Hyderabad, and tier two cities in Maharashtra as well. So this is my brief introduction. Awesome, awesome. So, Abhijit, how did you get like ये automation का जो कीड़ा है ये कब से आया? Like how? And how did you get to know about us? Right. So we are into interior designing business for last 15 years. Even though my background is little different, I've done engineering, and my wife had started this business, interior designing business. But last couple of years, 3, 4 years, we noticed since we are into turnkey projects as well as consultancy projects, there are a lot of things that we do and a lot of things that we need to keep track of. And we were searching for something like Kevalji is doing, Keval Kishan sir, automation. We knew we need to do something, but we did not know exactly what needs to be done or is it even possible. So earlier we started our search with ERPs, and we contacted a couple of ERP guys and then paid them the amount as well. Oh, And how much? right, uh, once we paid 50,000, and one time we paid 25,000. So 50,000 person. After that, we came to know about this through Facebook ad, and we joined introduction class. And when we knew that this is something that is going to help us, we spoke to the other gentleman, and he was very fair, and he refunded some amount. That's so nice of him. And that's when we started with automation last year uh, with Okay. MBA program. Okay, great. So you said you are into like turnkey projects. So like how does it work कि आप कोई बिल्डिंग है जो बनी हुई है और उसका complete interior करते हैं from A to Z, right? Right, yes, right. From civil, if there are any civil changes, brickwork, flooring, marble, tiles, plumbing, electrification, fall ceiling, and everything else that you can think of in interior design. Awesome, awesome. So this is a message to all the people who are from interior designing or construction. This discussion is going to be really awesome. So Avjit, I'm sure as a business owner, you are a problem solver, right? And past 15 years, we are solving the problem of your customers, right? But now Right. it was your turn to solve your internal business problems. So just take us through the kind of problems that you were facing in your business, and I would request if you go one by one so that our viewers could understand the problem that you were facing, and maybe they could connect with your problem, and maybe few viewers could comment on the chat box as well that whether they were facing this problem or not. So please start with the first problem that you were facing in your business. Sure, right. So when we started this business, we had very few clients, maybe a couple of clients, 2, 3 clients, 4 clients, and that time it was fairly easy to manage. But when we started growing, when we started actual, huge projects, uh, we started facing a lot of challenges in terms of data organization, or clients data. If we are discussing something with clients, if it is really placed in right place, or the team did not know what is to be found where. They used to we used to tell each other वो वहां पे रखा है, ये यहाँ पे रखा है, इस सिस्टम से ले लो, यूजर 5 से ले लो, यूजर 7 से ले लो. एंड वो सारे चैलेंजेस थे. तो जब हमने ऑटोमेशन के बारे में सोचा, तो अभी सारी चीजें right from client inquiry CRM to post handover support,
Okay. सारा सब कुछ सिस्टमेटिक वे में अभी कर रहे हैं, तो काफी कुछ आसान हो गया है टीम्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, वेंडर्स के लिए। इन बिटवीन सब कुछ ही उसमें, जैसे जॉब एप्लीकेशंस सारे इस ईमेल में आ रहा है, उस ईमेल में आ रहा है, कहीं वेबसाइट के थ्रू आ रहा है। तो वो सारा सब कुछ अभी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होने की वजह से, whether we are in office, we are not in office, we get daily updates, what is वीकली प्लान होता है पूरा टास्क मैनेजमेंट टूल के थ्रू, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के थ्रू, पूरा सारे प्रोजेक्ट्स का शुरू से एंड तक सब कुछ प्लानिंग हो जाता है। इवन दो देयर इज सम आई वुड से डिले हियर एंड देयर, बट at least we are on track, and very soon we'll be following the timelines as per the project management plan as well. Okay, so Abhijit, you touched many points, starting from CRM to job applications to team management to project management to costing, like literally every pain point of a business owner you touched. But can we see the automation systems which you are using right now? Right. So I will go through. I'll share my screen Sure. quickly. I'm sharing the full screen. Right. So take us through every system and tell us how this is solving the problem and what is the benefit that you're getting from it. Sure. So now, if you can see my screen, I love the way you have organized your Google Drive. It's beautiful. Human assets, sales and marketing, accounts, project management, operations, client inquiry. Otherwise, what happens? Google Drive looks like a mess. People don't know how to even organize it. So was it the part of the learning of the program on how to organize it? Of course, of course. I mean, before the program, I used my personal drive, but then, just upload wherever you want and then keep searching and all this. So this was part of the program. I think the first chapter itself, Right. wherein you had mentioned that don't have more than 6 folders on the drive itself, but we have 7. That's okay, I think. But then, yes, everything is organized, and now we are very happy with this. Sure, please. So right from client inquiry, if I'm opening this client inquiry, if you see, this is the client inquiry form that we have built. Could you click on the preview? We could have a look at the form. Sure. Okay, email address. You have really designed it well with your branding. Full name, mobile and number. Yes, mobile number, and depending on your requirement, when you choose, you go to section. I will not take much of time going through that, but then just this one form. I think if we could go through that, that will be helpful for our viewers, because people don't know the powerful feature of sections in Google. Sure. So I'll just tell us on what is the benefit of it. Okay, so you capture the name, email address, and then the mobile number. And if the mobile number is not 10 digit, it won't take you forward. So approximate square feet, let's say 2,500, full site address, XYZ, and how old is the property? Let's say this is ready property. And since I have selected this, if you see 4 BHK flat, it will now take me to 4 BHK flats data collection. It will not show you any 2 BHK or 3 BHK. So if you go down, see 4 BHK flat requirements. So I've given just a image for you to understand, like living room and dining requirements. What are your requirements? You can select as many as you want, or none of the above as well. Nice. Kitchen requirements in detail. Master bedroom requirements. Wow. I wish every interior designer in India could get themselves so much organized like this. They could take their business to the next. Exactly. Okay. And when they fill this form and when this data comes in front of us for the first meeting, when our team goes through the presentation, they explain them what we do, how we do. They show the projects that we've done. So we are very clear as to what is their requirement. We don't waste our time.
discussing your requirements. What do you want? How do you want this, that? So civil work requirements are also captured here. Then common requirements, balcony decoration, My goodness. right? Wow. Outside main door lobby requirements, and mandir in which room. Any other specific requirements that we have not covered And then above? this is the initial data capturing, and then when you go to the client visit, client might add or delete something as well. But at least you get to know what client's expectations are, and that help you to close the deal as soon as possible. Exactly. Very true. Very true. And we also ask for the plan. It is not mandatory. If they have some plan, builders plan something, they can share that here. So अच्छा. these last three questions are non-mandatory. All other questions are mandatory. So कुछ इंक्वायरी आई भी है इस फॉर्म पे या नहीं आई है? इंक्वायरीज तो बहुत ज्यादा है अगर आप देखते हैं राइट फ्रॉम वाह. इसमें अगर देखते हैं तो these are the inquiry and ये कॉलम 2 जो है कमेंट्स फ्रॉम एक्सक्लूसिव these are our comments here फॉलो अप जो लेते हैं सेल्स टीम तो जब बात करते हैं तो उनके कमेंट्स तो वी नो एग्जैक्टली कमेंट है कि इस क्लाइंट का क्या सिचुएशन है, क्या इनको स्टेटस है एंड एवरीथिंग. एंड देन प्रोस्पेक्टिव कैटेगरी हमने करके रखी है ड्रॉप डाउन से. नाइस. वेरी मच इंटरेस्टेड मे बी इंटरेस्टेड, नो फॉलो अप रिक्वायर्ड. क्या बात है, क्या बात है. तो इसमें से बहुत सारे क्लाइंट्स अभी करंटली वी आर डूइंग मोर देन 50 प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम. एक टाइम पे 50 प्रोजेक्ट्स. पीपल आई नो इन कंस्ट्रक्शन दे आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इवन 5 प्रोजेक्ट्स. So, right, and that too turnkey projects. Just designing is different. Consultancy project, if 50 projects someone is doing, that's all right. Turnkey projects wherein you have to purchase everything, you have to coordinate with contractors, vendors, you have to appoint contractors, everything you have to take care of, right from expenses, procurement expenses, and everything else. Nice. So this is the client. So when you capture the data as well, a great impression also goes to the client that you are a professional company, capturing everything and organizing everything. So client always feels कि अगर vendor organize है तो काम भी अच्छा ही organized काम ही करेंगे, quality लेके आएंगे. Definitely, yes, that's a big impact. Even though our industry is not that well organized yet, contractors से काम करवाना है वो सब कुछ, but still at least we are putting in our right foot forward कि हम जितना organized हो सके, जितना ऑफिस वर्क से लेकर के फिर टारगेट्स जब देते हैं, जब टास्क मैनेजमेंट टूल में से जाएंगे हम तो विल सी कि टास्क जब आई अंडरस्टूड कि इस तरीके से आप क्लाइंट इंक्वायरी जनरेट कर रहे हैं, व्हिच इज रिमार्केबल. इससे बेनिफिट क्या हुआ है आपको? सबसे पहले तो वी आर ऑर्गेनाइज्ड एज टू किस पे फोकस करना है, किस इंक्वायरी पे करना है, किस इंक्वायरी पे नहीं करना है. राइट. सो एक इंक्वायरी मैनेजमेंट का आपका बेनिफिट हो गया कि हॉट प्रोस्पेक्ट कौन है और किन से आपको फॉलोअप नहीं करना है. उसके अलावा क्या? सेकंड बेनिफिट, सारे इंक्वायरीज एक ही जगह पर आ रहे हैं. भले ही ऑफिस में कॉल आए, किसी और के पास कॉल आए, सेल्स टीम के पास आए, तो सबके पास एक क्लाइंट इंक्वायरी फॉर्म जो है ना सबके फोन में पिन करके रखा हुआ है स्क्रीन पे, एंड दे जस्ट सेंड दैट फॉर्म. और वो जब चला जाता है और कोई वेबसाइट पे अगर कर रहा है तो वेबसाइट पे भी अगर आप देखते हैं तो ये फॉर्म एम्बेड करके रखा है हमने. नाइस. सेम वेंडर्स रजिस्ट्रेशन के लिए भी फॉर्म इधर करके रखा है, एंड एट द सेम टाइम करियर्स के लिए जो है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जिसे हम बोलते हैं वो भी सारा इस पे करा है. तो सब सारा डेटा जो है एक जगह पे है. दैट इज सेकेंड बेनिफिट. थर्ड बेनिफिट, उसका जब ट्रैकिंग, जब इंक्वायरी मैनेजमेंट हो रहा है तो आपकी वेबसाइट काफी अच्छी लग रही है. थैंक यू. राइट, ग्रेट. सो आई थिंक आपका इंक्वायरी मैनेजमेंट का क्लियरेंस आ गया दैट यू आर डूइंग अ रिमार्केबल जॉब. And from your portfolio, it looks like that you're a very organized person as well. It reflects in the kind of automation that you're doing. So inquiry management is sorted for you right now. Right. Yes. Right. Awesome. So now tell us the next challenge, because when it comes to construction and interiors, this industry is full of challenges, but nothing else. Right. The second was definitely operations. ऑपरेशंस का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किसी को पता नहीं कहाँ है, कौन सा डेटा कहाँ है, क्लाइंट का मास्टर डेटा कहाँ पर था, किसी एक ने फोन करके ले लिया, ईमेल पे ले लिया, उसी के ईमेल में था.
वो बंदा छुट्टी पर है या ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, तो वो सारे चैलेंजेस बहुत सारे आते थे। तो अभी अगर आप देखते हैं तो क्लाइंट मास्टर डेटा, वो सारा क्लाइंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म से लेकर के उनके जो सारे अप्लायंसेस कौन से वो सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट फ्रॉम बिल्ट इन माइक्रोवेव, चिमनी, बिल्ट इन वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर, ऑल दोज डिटेल्स आर कैप्चर्ड इन द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। तो नाइस। जब हम वर्किंग ड्राइंग्स कर रहे हैं या डिजाइनिंग कर रहे हैं, 3D डिजाइन कर रहे हैं, तो ये सारा डेटा यहाँ से हम देखते हैं, और देखते हैं। उसके साइजेस के हिसाब से वी include all those details in the drawings as well. राइट, सो ऑपरेशंस में जो आपको डेटा रिक्वायर्ड है क्लाइंट सेट से, वो भी ऑर्गेनाइज हो रहा है एक जगह आ रहा है। Yes, definitely, yes. Okay, and I can see contractors, vendors. So how are you managing them? जब भी कभी कोई इंक्वायरी आती है, बहुत सारे वेंडर्स आना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले हम फॉर्म भेज देते हैं, मिलने आना चाहते हैं कि वी वांट टू वर्क विद एक्सक्लूसिव इन पुणे एंड डेफिनेटली अदर सिटीज आल्सो, बट पुणे में जैसे हेडक्वार्टर्स है, तो बहुत सारे वी हैव गुड प्रेजेंस इन पुणे, तो बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, तो उनको फॉर्म दे देते हैं। तो सबसे खास बात यह है कि मान लीजिए किसी ऑटोमेशन वेंडर का फोन आता है, तो उनका डेटा भी जो है वो सारा एक जगह पर, जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा नहीं कि हर किसी वेंडर की हर रोज रिक्वायरमेंट है, ऐसी नहीं है, बट एटलीस्ट वेंडर फॉर्म, पहले फॉर्म दिखा देता हूँ क्विकली, तो उनका प्रोफाइल, पोर्टफोलियो से लेकर सब कुछ हम मांग लेते हैं पहले फॉर्म से ही, एंड दे आर हैप्पी टू फिल दिस फॉर्म, सो दैट उनका वेबसाइट है अगर है तो, किस सर्विस कैटेगरी से है वो, उनका कॉन्टैक्ट पर्सन, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एंड उनका प्रोफाइल या कैटलॉग, ये मैंडेटरी है, Awesome. ताकि हम जब देखें ये डेटा हमारे पास जब आता है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, तो नाइस। इस तो तरह राइट, से जैसे, कैटलॉग भी काफी दिख रहे हैं, तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है एक क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है और इनका कैटलॉग में ये डिजाइन है, तो दीज 4 वेंडर्स कुड बी टेकन फॉर दिस प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली, एंड सिमिलरली फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स एज वेल, कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उनका फॉर्म तो हमने हिंदी में बना कर रखा है। अच्छा, दिखाइए एक बार हिंदी वाला फॉर्म। सो फॉर आवर व्यूअर्स who are aspiring entrepreneurs, guys, Google is that technology which is not available only in urban but rural places as well. So if somebody is not educated or comfortable in English, ये फॉर्म हिंदी में भी बन सकता है, मराठी में भी बन सकता है, पंजाबी में भी बन सकता है। So Google give you the multilingual Google form creation capability as well. So आपका पूरा नाम, फोन नंबर, ओके, ऑसम। तो हिंदी में भी वो चीज आपकी क्लियर हो सकती है। ग्रेट, ग्रेट। राइट, 2 फोन नंबर्स, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, पूरा राइट, एड्रेस, बिजनेस किस तरह कारपेंटर। की तो कॉन्ट्रैक्टर है। ये जितने भी ये लोग हैं, लाइक सिविल कॉन्ट्रैक्टर, पीओपी, ये लोग ये फॉर्म फिल कर रहे हैं? कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। साथ ही Awesome. साथ हम दूसरे 3 आर्किटेक्ट्स के नाम और नंबर, रेफरेंस नंबर भी ले रहे हैं, अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट नंबर, उनका पैन कार्ड का फोटो ले लेते हैं, आधार कार्ड का फोटो भी ले लेते हैं, रेट लिस्ट अगर है उनका कुछ, तो डेफिनेटली awesome. फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो ये मतलब सारा। आपने तो अमेजोन लेवल का सिस्टम बना दिया है, वेंडर और इधर कस्टमर्स, और स्केलेबिलिटी मतलब नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। वी आर I can imagine you handling 500 projects in next 2 years. The way you have organized everything, vendors, contractors, clients, the database, project management, task delegation, 500 projects could be executed in this strategy अगर आप scale करेंगे अपने business को। थैंक यू वेरी मच, और अगर ऐसा होता भी है तो आपका उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहेगा केवल जी। Great, great. So तो अभी आपने अगर आप फॉर्म, ये देख रहे, सॉरी गो अहेड। हाँ, सो आपने कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताया, वेंडर मैनेजमेंट का आपने बताया, प्रोजेक्ट्स कैसे मैनेज करते हैं आप? कुड यू पुट सम लाइट ऑन दैट? दिखा देता हूँ उसके पहले क्विकली ये, जैसे अभी ये फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये फॉर्म के थ्रू आया, एंड अच्छा, नाउ ही इज डूइंग ही हैज डन एटलीस्ट 15 साइट्स इन लास्ट 1 ईयर। अगर आप देख रहे हो, वो आए थे लास्ट ईयर जून में, 9 मंथ्स ही हुए अभी तक, तो ही इज डन 15 साइट्स एंड करंटली ही इज डूइंग 3 साइट्स ये, एंड जो रेड है वो दैट इज लाइक इट्स नॉट ऑफ आवर यूज, तो इस तरह से ये पूरा ट्रैक भी होता है। नाउ आई विल टेक यू टू प्रोजेक्ट्स। और प्रोजेक्ट में मुझे बिफोर एंड आफ्टर का बताइएगा। पहले
कैसे मैनेज होती थी चीजें? और राइट, तो पहले का सिस्टम तो अभी नहीं है, लेकिन मैं ओरली बता देता हूँ। प्रोजेक्ट्स का एक फोल्डर हमारे एक ऑफिस के एक सिस्टम पे रखा हुआ था, उसका शेयरिंग राइट्स सबको दिया हुआ था। और जब लॉकडाउन की बारी आई थी, तब काफी चैलेंजेस आए कि वो डेटा सब ऑफिस में ही है। तो अभी हमने क्या किया है, शेयर ड्राइव में मैंने ये प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर रखा हुआ है। शेयर ड्राइव है, तो इसमें अगर आप देखते हैं प्रोजेक्ट्स, ओके, इसमें सारे क्लाइंट्स के सेपरेट प्रोजेक्ट्स है। नाइस। और अगर इनका एग्जांपल लेते हैं, तो इनके सारे पीडीएफ ड्राइंग्स जो होते हैं, जो साइट पे जाते हैं, 3D डिजाइन्स जो होते हैं, बहुत सारे ओल्ड होते हैं, और फाइनल एक फाइनल फोल्डर होता है जिसका एक्सेस हम क्लाइंट को भी दे देते हैं। जब फाइनल हो जाता है सारा, राइट, तो क्लाइंट को जब दे देते हैं, तो दे आर ऑल्सो एट पीस ऑफ माइंड कि हाँ, ये सारा डेटा मेरे पास है, ऑसम। और इस तरह से सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। सो ऑर्गेनाइज आपने दिखा दिया, बट अभी एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? लाइक जब आपकी क्या प्लानिंग है वर्सेस क्या एक्चुअल चल रहा है? दिखाता हूँ। हम्म, तो वो टास्क मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से होता है। इसमें तो आउटपुट है उसका, उन राइट, चीजों बट का। शो अस द ट्रैकर। हाँ, वही टास्क मैनेजमेंट वही दिखा रहा हूँ अभी मैं। यहाँ खुला हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है ऑफ कोर्स। और इसमें जब भी कोई नया प्रोजेक्ट हम ऐड करते हैं, तो उसका एक नया शीट बन जाता है, प्रोजेक्ट नाइस, शीट। नाइस। और उसमें हम जा करके सो ये अभी आपके सारे रनिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? रनिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। डेट्स में थोड़ा सा आगे पीछे गड़बड़ हो रहा है, जैसे मैंने पहले ही बोला अभी तक, लेकिन पीपल आर ऑल्सो गेटिंग यूज टू इट। तो हम वीकली मीटिंग लेते हैं टीम के साथ कि ये ऐसे नहीं हो रहा है, या सिस्टम में फॉलो नहीं कर पा रहे हैं अभी राइट। सारे टीम मेंबर्स। कुछ कुछ टीम मेंबर्स है, लेकिन वो भी अभी धीरे धीरे सब कुछ कर रहे हैं। तो आई थिंक एवरीथिंग इज गेटिंग ऑन ट्रैक, और बहुत जल्दी एक सब कुछ। कोई एक प्रोजेक्ट का व्यू दिखाइए जो शीट बन रही है। ये रहा इधर एक प्रोजेक्ट है। तो यहाँ से जो टास्क यस, जाते हैं, ये सीनियर जो टीम लीडर्स है ना, उनको असाइन किए जाते हैं। नाइस। सो यू और हैव क्रिएटेड माइलस्टोन्स लाइक प्लानिंग, 3D डिजाइनिंग. कुड यू जस्ट स्क्रॉल डाउन? एंड आफ्टर टू दैट डी ड्राइंग्स, टू डी ड्राइंग्स। एग्जीक्यूशन, परचेज. ऑसम. सो बहुत ही बिट्स एंड पीसेस में आपने सब टास्क काफी सारे बना रखे हैं, तो आई एम श्योर इतने काम होते होंगे इंटीरियर डिजाइनिंग के काम में. हाँ, हाँ होते हैं डेफिनेटली। और ये काम के भी सब टास्क के, और सब टास्क जब बनते हैं तो वो जाते हैं टास्क मैनेजमेंट टूल में, वो मैं दिखा देता हूँ। तो राइट, ये राइट. टारगेट्स जो है, ये सीनियर टीम लीडर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए असाइन टू, अगर आप बट आप ये कॉलम दिखाइए बी इस में पे देखो। कैसे चलता है, स्टार्ट और कंप्लीशन कहाँ करते हैं वो एक बार आप व्यूअर्स को दिखा ये बताइए. कॉलम एम में जब जैसे ही कोई डेट होता है, उस डेट को अगर स्टार्ट करते हैं वो, तो वो, या उसके आगे पीछे की भी डेट को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट में सिर्फ क्लिक कर देते हैं, तो वो डेट यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है, एक्चुअल स्टार्ट डेट। जैसे 20 अक्टूबर को स्टार्ट होना था, लेकिन 27 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ। और कंप्लीशन जब होता है, तो यहाँ पर वो टिक मार्क कर देते हैं। तो ये ऑन टाइम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ प्लान स्टार्ट डेट और प्लान फिनिश डेट के बीच में ही हुआ है कंप्लीशन, तो ऑन टाइम। कुछ चीजें जो डिले होती है, तो यहाँ पर अभी जैसे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो क्लाइंट को पोजीशन नहीं मिला था प्रोजेक्ट का बिल्डर से। तो हमारे ड्राइंग्स वगैरह सारा सब कुछ रेडी हो गया था ऑन टाइम, बट डिले हुआ यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने में। बट आई लव इट, एटलीस्ट यू नो 50 प्रोजेक्ट्स में कौन सी चीज कहाँ पे है. अदरवाइज पीपल गो टू द साइट एंड चेक ऑन व्हाट्स हैपनिंग, और दे जस्ट लैश आउट एट देयर टीममेट्स कि ये क्यों डिले हो रहा है, वो क्यों डिले हो रहा है. बट नाउ यू कैन एक्चुअली पिन पॉइंट, ओके, कि इस टीममेट का ये काम अभी थोड़ा अटका हुआ है. राइट। वाह. और सारे प्रोजेक्ट्स का डैशबोर्ड भी यहाँ पर दिखता है। ये टूल भी जो है, ये ऑटोमेट योर बिजनेस की देन है, एमबीए कैसा कैसा 2.0। फील होता है इसके बाद, मतलब कि आप इतने ऑर्गेनाइज्ड हो गए हो, कैसा फील होता है? डेफिनेटली काफी चैन की नींद सोते हैं हम। डेफिनेटली हम देखते हैं हमारे फ्रेंड्स को, जो इस हमारे फ्रेटर्निटी के जो दूसरे लोग हैं। अभी जैसे मैंने मेरे फ्रेंड को फोन लगाया था कि कहीं घूमने चलते हैं, तो यार बोलता है यहाँ पे मैं बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ, ये काम चल रहा है, वो चल रहा है इधर।
रात को सोने नहीं देते क्लाइंट्स। तो ये सब सुन के थोड़ा लगता है कि डेफिनेटली वी आर डूइंग गुड, बट देयर इज लॉन्ग वे टू गो, देयर इज लॉट ऑफ मोर थिंग्स टू डू एंड अचीव। क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो पैन इंडिया ऑफिस, जैसे अभी हमने हैदराबाद में ऑफिस ले लिया है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये भी लग रहा है कि वहां पर टीम रहेगी, विल नॉट बी देयर, विल नॉट बी नाइस, देयर। नाइस, नाइस। बंजारा हिल्स में ऑफिस है, तो वहाँ ये सारे सिस्टम्स सारे वहां से एक्सेस करेंगे, और सारे प्रोजेक्ट्स का सब कुछ डे टू डे अपडेट, राइट फ्रॉम साइट विजिट पे जाते हैं हमारे टीम एग्जीक्यूशन टीम वाले, तो वो सारा अपडेट कर देते हैं कि क्या प्लान है, क्या चल रहा है, आगे क्या मटेरियल चाहिए, कब तक चाहिए। एंड वो सिर्फ फिर परचेस टीम के पास चला जाता है, तो दे स्टार्ट सिलेक्शन एंड ऑल दैट। तो काफी कुछ सो पैन पुणे इंडिया से ऑपरेशन के लिए भी ऐसा पुणे से पैन इंडिया का जो विजन है, है। ये कब आया मतलब? और ये डू यू थिंक कि ऑटोमेशन के बिना ये हो सकता है? अ, ये आया तो दिमाग में 4-5 साल पहले से है, लेकिन अगेन जिस तरह से हमारा चल रहा था उस तरह से काफी मुश्किल हो जाता, बहुत मतलब मुझे नहीं लगता कि वहाँ क्या हो रहा है किसी को कुछ आइडिया नहीं, क्लाइंट का क्या चल रहा है या साइट पर क्या चल रहा है। तो ये जब अभी ऑटोमेशन हो गया है, एंड द बेस्ट थिंग इज इस तरह हमने किया है, राइट। तो वो ईआरपी में किसी और से कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, चेंजेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पर जब भी कुछ लगता है तो हमने वो चेंज कर दिया, इधर सिस्टम में चेंज कर दिया। तो ये सारा सिस्टम की वजह से अब पैन इंडिया इज डेफिनेटली वेरी इजी, वेरी इजी, अदरवाइज वुड हैव बीन अ नाइटमेयर। एंड जब टर्नओवर की बात करते हैं, अभी कितना टर्नओवर है, एंड ऑटोमेशन के थ्रू कितना टर्नओवर आपका अब हो सकता है, कितनी ग्रोथ हो सकती है अगले 2 सालों अभी हमारा टर्नओवर जो है वो 10 CR प्लस है, but then we are targeting 100 CR in next 3 years, or turnover 100 CR turnover in next 3 years. में? या And we have a vision of 10,000 spaces ऑसम, designing by 2030. great, good to know that. And I think 10x can be achieved in 3 years. It's not difficult because now you have got the vehicle to do that. Without vehicle, you might be walking, but right now you're riding and you're flying because of the automation. Definitely, yes. राइट, राइट। सो प्रोजेक्ट्स का आपने बता दिया कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट शीट पे के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है, योर टीममेट्स आर अपडेटिंग वेदर दे हैव डन द वर्क और नॉट, एंड देन यू आर गेटिंग अ कंप्लीट एनालिसिस एज वेल। बट प्रोजेक्ट के अलावा अगर कोई और एक्टिविटीज, कोई और टास्क होते हैं, वो कैसे आप देते हो और उसमें क्या रिमाइंडर होता है, वो आप पूरा बताइए। डेफिनेटली, तो जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के थ्रू हम सीनियर्स को टास्क दे देते हैं या डेडलाइंस देते हैं, वो लोग फिर टीम मेंबर्स को टास्क मैनेजमेंट टूल के थ्रू श्योर, सारे टास्क देते हैं। ये इसका स्नैपशॉट है, यहाँ पर जो दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा गुड टू बाजू सी, में हटा देता हूँ। गुड टू सी, काफी चीजें कंप्लीटेड हैं। हाँ। ग्रेट। अच्छा, ऐसा होता है कई बार अभिजीत कि आपने काम दिया एंड देन यू फॉरगेट कि क्या काम दिया था, एंड अदर पर्सन इज आल्सो बिजी इन 10 अदर थिंग्स, तो वो भी भूल जाते हैं, बट थ्रू दिस, नहीं, हाँ, थ्रू दिस दे कैन नॉट फॉरगेट। राइट, पहले वही होता था पहले कि बोल दिया आज कि हाँ ये करना है, हम भी भूल गए, वो भी भूल गए। जब बाद में जब आग लग जाती है, जब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, क्लाइंट चिल्लाने लगते हैं, या कहीं लॉस हो जाता है बड़ा, तब ध्यान में आता है अरे ये तो बोला था। जब हम पूछते थे कि अरे ये करना था, हाँ सर राइट। भूल गया, भूल गया। तो उसका कोई आंसर नहीं है, भूल गया। अभी सिस्टम के थ्रू होने की वजह से भूलने का कोई स्कोप नहीं है। राइट, सो एक बार व्यूअर्स को बताइए कि आप कैसे टास्क डेलीगेट करते हैं। राइट, तो इसका टास्क डेलीगेशन का फॉर्म जो है, और ये फॉर्म आपके मोबाइल पे भी होगा? सबके मोबाइल पर है, सबके सिस्टम पर है। और इंट्रानेट जो सबसे वंडरफुल टूल है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, डेफिनेटली आपको पता है बट सारे व्यूअर्स को दिखाऊंगा, तो उस पर ये सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है टीम मेंबर्स को, कहाँ क्या रखा हुआ है, किधर क्या रखा हुआ है। तो ये टास्क मैनेजमेंट किसको असाइन किया जा रहा है, टारगेट डेट क्या है, एडिशनल इन्फो कुछ है, टास्क तो पहले पहले टास्क डिस्क्रिप्शन है, और फिर एडिशनल इन्फो उसके बारे में और कुछ है, प्रायोरिटी क्या है, असाइन बाय क्या है, कौन है, एंड देन यू सबमिट इट।
वो उनको ईमेल में जाता है। अभी व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी कर रहे हैं हम, तो व्हाट्सएप पे भी जाएगा और उनके लिए बहुत ही आसान होता है। ईमेल में जब जाता है तो उनको सिर्फ एक क्लिक करना है फॉर्म पे, अपना अपना फॉर्म खुल जाता है, वहां पर उनको सारे टास्क दिख जाते हैं। एक तो एक्सेल शीट तो जाती है, एक्सेल नहीं सॉरी गूगल शीट तो जाती है ईमेल में, बट ये टास्क भी उनको दिख जाते हैं, कौन से टास्क क्या असाइन हुए हैं और उनकी डेट, टारगेट डेट क्या है, तो वहां से वो कंप्लीटेड मार्क कर देते हैं एंड वो सारा सब कुछ कैप्चर होता है। यहाँ पर कहाँ गया वो, हाँ यहाँ पर। राइट राइट राइट। सो तो बिफोर वी, वीकली वीकली हम टास्क एलोकेशन करते हैं, पूरे अच्छा, हफ्ते का पता होता है सबको कि किसको क्या करना है, किस दिन क्या करना है, वेरी नाइस। तो दैट वे वी आर बिट ऑर्गेनाइज्ड। सो इसमें बिफोर वी गो फर्दर, एक ये टास्क डेलीगेशन टूल से क्या चेंज आया कंपनी में इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ आरओआई फ्रॉम योर एम्प्लॉयज, इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, इन टर्म्स ऑफ द टेंशन विच माइट हैव बीन रिड्यूस्ड? वो बताइए कि चेंज क्या है टास्क डेलीगेशन से। शुरू में डेफिनेटली कोई भी चेंज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो सबका थोड़ा बहुत तो ये रहता ही है, रेजिस्टेंस रहता ही है कि अभी ये भी करना है क्या, अभी वो भी करना है क्या। नाइस। बट सो जैसे जैसे बट यस, जैसे जैसे यूज करने शुरू करते हैं, तो जब उनको सब कुछ ऐसे नहीं कि हम थोप नहीं देते हैं कोई भी चीज, दिखाते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है, इससे आपका प्रोडक्टिविटी ट्रैक होगा, उससे आपका रिविजन आप कितने ले रहे हो, उससे आपका क्वालिटी होगा या रिवर्क कितना हो रहा है उसकी वजह से क्वालिटी। तो अप्रेजल जब डिस्कशन होगा एनुअली, तो ये सारी चीजें आपके सामने रहेंगी। आपका हर किसी का, जैसे अगर आप देख रहे हैं डैशबोर्ड कंप्लीट, पूरा टास्क डैशबोर्ड जो है, उस शीट का आउटपुट यहाँ पर दिखता है, कंप्लीटेड कितने, डिलेड कितने, पेंडिंग अभी कितने दिखते हैं और ओवरड्यू क्या है, ओवरड्यू I कितने love टास्क। I love the way you have added your branding, including your logo and everything. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो मुझे 64 टास्क हैं, अभिजीत जी के 11 पेंडिंग है, पर 238 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें ये जो नीचे ग्राफ्स आ रहे हैं, पर वो व्यूअर्स को बताइए उसको क्या श्योर। एनालिसिस। और ये टास्क मैनेजमेंट टूल 2.0 है, इसलिए टास्क कंप्लीटेड 238 दिखा रहा है। जब हम 1.0 यूज कर रहे थे तब काफी सारे, मतलब मे बी 800,000 टास्क हमने किए थे। तो अगर आप देखते हैं तो ये KRAs जो है, ये पेंडिंग टास्क है। ये टीम मेंबर जो है एक्चुअल में बहुत काम करती है, बट ये चीज उसने मार्क करना रह गया है उससे। बट क्लाइंट फॉलो अप हो रहा है एंड अदर थिंग्स। हर एक टीम मेंबर का अगर आप देख रहे हैं तो राइट। KRAs किसके क्या है, किसके क्या है, और टॉप पे टास्क में। जो ड्रॉप डाउन आ रहे थे, एक बार वो भी क्लिक करिए। श्योर। तो वो हर एक टीम मेंबर के जो भी है टास्क, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ ओनली अगर ये करते हैं तो सिर्फ इसका डेटा, तो जब हम अप्रेजल डिस्कशन क्वार्टरली करेंगे, 6 मंथ्स का होगा और एनुअल होगा, तो ये सारा डेटा डेफिनेटली काम आता है वहां पर कि कितने नाइस। टास्क एलोकेट हुए हैं, कितने डिले हुए हैं, कितने। परफॉर्मेंस अच्छी है इस कैंडिडेट की, 84.3% यस। कंप्लीटेड, वेरी गुड। ग्रेट, मतलब लग रहा है कि प्रॉपर मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम कर रहे हो। थैंक यू वेरी Awesome. मच, आपका सपोर्ट, आपका, आपके साथ साथ आपकी टीम, सारे नाम तो अभी याद नहीं, लेकिन शादाब, प्रियंका, गौरव, इन सब की मैं हेल्प लेते रहता हूँ। सपोर्ट सिस्टम जो आपका इतना स्ट्रांग है, इतना अच्छा है, सिर्फ एक फॉर्म फिल कर लो एंड टाइम स्लॉट चूज कर लो जो भी अवेलेबल है, राइट। उस टाइम स्लॉट पे पहुंच जाओ। और जो भी कहीं हम ये टूल्स बनाते वक्त कहीं अटकते हैं, तो उनका सपोर्ट डेफिनेटली बहुत काम आता है। ऑसम ऑसम, ग्रेट। विदाउट सपोर्ट चीजें हो नहीं पाती हैं, बिकॉज तब बिजनेस ओनर को टाइम नहीं मिलता है, और अगर टाइम मिलता भी है तो जहां भी स्टक होते हैं वो, अगर हेल्प ना मिले तो उनका रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। दैट इज एग्जैक्टली। फोकस अगर ऑन सपोर्ट, सपोर्ट अगर प्रोवाइड। कहीं ये सपोर्ट सिस्टम नहीं होता ना आपका, केवल जी मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेनिंग हम कर लेते हैं और कहीं छोटी सी जगह पे कहीं अटक जाते हैं, तो उसमें जितना टाइम जाता है, फिर इंटरेस्ट जब लूज होने लगता है ना, तो इम्प्लीमेंटेशन आगे का कोई बढ़ ही नहीं पाता। तो सबसे बेस्ट मैंने ये कर दिया कि जहां कहीं अटके, एक सपोर्ट टिकट रेस कर दिया और बाकी दूसरा, अगला दूसरा कोई टूल ले लिया, उस पर काम करना शुरू कर दिया। जब भी वो 1 2 दिन 3 दिन बाद जब भी वो सपोर्ट कॉल हो, और उसमें स्क्रीन शेयर करो, और छोटी सी चीज होती थी कि हाँ ये आपने ये कर दिया, ये नहीं करना था, तो वो कर लिया, तो उसके बाद पता भी चलता है कि हाँ अगली बार अगली टूल में ये गलती नहीं करनी है।
बट सपोर्ट सिस्टम आपका बहुत ही स्ट्रांग है, और वही हम हमारे इसमें भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली टाइम स्लॉट वगैरह नहीं है, बट अगर आप देखते हैं तो ऑपरेशंस में कस्टमर सपोर्ट पोस्ट हैंडओवर। नाइस 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 नाइस। तो बहुत सारे कस्टमर्स को सपोर्ट चाहिए होता है हैंडओवर करने के बाद साइट, तो हम 1 साल का सपोर्ट फ्री देते हैं। तो उसके लिए फॉर्म बना कर रखा है हमने कि आपको क्या दिक्कत जा रही है, आपका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर। तो ये जैसे आ जाता है हमारे पास वो एक प्रॉपर एक्सेल शीट में, तो हम वो असाइन कर देते हैं टास्क डेलीगेशन टूल में। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये हुआ नहीं हुआ। जिसको असाइन किया वो फॉलो अप कर लेगा, वो देख लेगा वो सब कुछ, तो क्लाइंट भी खुश रहते हैं। और ये करने के बाद ना, इस फॉर्म फिल करने के बाद उनको ऑटोमेटेड ईमेल भी जाता है। हर किसी फॉर्म के साथ हमने वो करके रखा है कि फॉर्म फिल कर दिया तो आपको ऑटोमेटेड ईमेल जा रहा है। आगे के थोड़े से कुछ इंस्ट्रक्शंस भी है कि आपको इतने दिन में कॉल आ जाएगा, या जो भी है वो सब सारे जॉब एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर कस्टमर सपोर्ट फॉर्म में ऑटोमेटेड ईमेल एक बहुत अच्छा चीज है जो जाता है। Awesome. So show us more problems and more solutions. और क्या-क्या problems है जो आपने solve की? Yes. So what is the next problem that you were facing and which got resolved? इंटीरियर डिजाइनिंग में एक सबसे बड़ी चैलेंज है कस्टमाइज्ड आइटम्स, क्योंकि हर क्लाइंट को एक नया कुछ सोल्यूशन चाहिए होता है। ये कोई एक सोल्यूशन नहीं है कि यही सोल्यूशन सबको या यही डिजाइन सबको पसंद आती है। Right. Customization is our USP, and that is something that has actually brought us so far. तो कस्टमाइजेशन ऑर्डर हर क्लाइंट का, हर प्रोजेक्ट का होता है। तो उसमें हमने काफी पहले जैसे पीडीएफ बनाते थे, वो यहाँ रख दिया वहां रख दिया। तो अभी अगर आप देख रहे हैं तो उसके लिए भी हमने एक फॉर्म बना रखा है। हर चीज का फॉर्म बना दिया आपने? आप हर चीज का फॉर्म बना दिया, तो डेटा सारा सेंट्रलाइज, सारे फॉर्म ऑर्गेनाइज हैं। हाँ, तो क्या क्या कस्टमाइज बनवाना है। नाइस। Okay. So मतलब things have gone to the next level. Vendors, contractors, clients data, support, project management, employee management. What is left? अभी सारी चीजें ऑर्गेनाइज कहाँ पे हैं? Like where are you placing everything? That is intranet. Definitely Google से ही लिया है हमने। तो इसका मैं जो प्रीव्यू है वो आपको दिखा देता हूँ। गूगल से लिया है, मतलब आपके थ्रू ही, आपने ही बना के रखा है टेम्पलेट और वही यूज किया है हमने, और उसमें माइनर कुछ चीजें ऐड करी, चेंज करी। तो अभी अगर आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, इसे मैं थोड़ा बाजू में हटा देता हूँ जूम का। नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा है? ओके ओके, तो ठीक है, तो मुझे दिख रहा है। बट एनी, तो ये जैसे वेबसाइट होती है अपनी एक्सटर्नल वेबसाइट, जो ये सारी दुनिया के लिए ये वेबसाइट है हमारी। स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हैं तो इसमें हम होम, प्रोजेक्ट, सर्विसेज, प्रोसेस, अबाउट, एक्सप्लेन, रिव्यू एंड कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें। तो इंटरनली टीम मेंबर्स के लिए हमने बना रखी है इंट्रानेट वेबसाइट। इंटरनेट वेबसाइट पर ये होता है कि एक होम पेज है, एक ऑपरेशंस है, टीम के रिलेटेड उनको जो भी चाहिए होता है, क्लाइंट इंक्वायरी का डेटा, ह्यूमन एसेट, इसका एक्सेस सबको नहीं है, एंड कंपनी पॉलिसीज। तो ये सारी चीजें, जो भी सिस्टम्स जो भी हमने अभी तक देखे हैं या अभी डिस्कस किए हैं, ये सारे एक जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में आ गए हैं। तो उनको कहीं और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे होम पेज पे all the buttons below, assign task, leave request, these are all the Google forms, right? Yes, जो हमने अभी डिस्कस किए, जो मैंने दिखाया, वो सारे यहाँ क्लिक करो तो वो फॉर्म खुल जाता है। मैं वो खोल के नहीं दिखाऊंगा, टाइम जाएगा, बट डैशबोर्ड जो है, जो अभी दिखाया था मैंने, वो सारा इधर सबको दिखता है। और ये मोबाइल पे भी ओपन हो जाता है? मोबाइल पे होता है, टैब पे होता है, यहाँ अगर देख रहे हैं आप, और लार्ज स्क्रीन पे भी होता है। तो ये होम पेज हो गया, इसमें ये सारे फॉर्म्स। ऑपरेशंस में दिखाइए क्या क्या डाला है आपने। I really feel proud that India is changing. Even unorganized sector like yours is automating so much that now truly we can say MSME industry is actually
changing and upgrading. This is the only way for us to compete countries like China. डेफिनेटली Okay. और साथ ही साथ जो आप जो गाइडेंस देते हैं, आप जितना दिल लगा करके जो हर एक चीज बताते हैं, करवाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं, स्पेशल मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करके, तो वो सारा सब कुछ सबको ही हेल्प करता है. तो जस्ट थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. Right. Welcome. तो Okay. ये ऑपरेशंस पेज है, इसमें गोल्स क्या क्या है इस मंथ के, और ये सारे जैसे पहले बताया था मैंने, अप्लायंसेस डिटेल्स लेते हैं हम क्लाइंट से, उसका फॉर्म है. वार्डरोब के इंटरनल हमने बना कर रखे हैं 10-15-20 ऑप्शंस. तो आपको कौन सा सूट कर रहा है आपने चूज करना है, इस रूम के लिए, उस रूम के लिए. वो कस्टमाइजेशन लिस्ट जो अभी दिखाई थी मैंने. डेली साइट विजिट रिपोर्ट है, जो एग्जीक्यूशन टीम जो साइट पर जाती है तो वो क्या करते हैं, क्या चैलेंजेस है, क्या मटेरियल चाहिए, वो सारा डेली की डेली साइट विजिट फॉर्म अच्छा. फिल करते Very हैं. good. Very good. कुछ पेटी एक्सपेंसेस होते हैं साइट पर, तो वो सारा वो पहले जब डायरी में लिख के लेते थे, कहाँ डायरी खो गई, इधर लिखा है उधर लिखा है, मुझे याद नहीं लिखना, वो सारा सब कुछ फॉर्म में आ जाता है. उनका वीकली पूरा पेमेंट हो जाता है जो भी एक्सपेंसेस उन्होंने किए हैं. कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पेमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर्स को और वेंडर्स को देने हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजर जब बोलते हैं तो वो पहले जो था व्हाट्सएप पे भेजते थे एक एक्सेल शीट बना के, तो अभी सारा एक ही जगह पर है कि कितना पेमेंट हुआ है, कितना बचा है, काम कितना हुआ है, वो सारा इस फॉर्म में आ जाता है. तो वी कैन मेक द पेमेंट, दिस Nice. रिक्वेस्ट. Nice. Nice. इनवॉइसेस जो आते हैं वो सारे कभी. आपकी जो टास्क एलिगेशन के थ्रू रिपोर्ट बनाई है, ऐसी इन सब फॉर्म्स की भी आप रिपोर्ट बना सकते हो डेटा स्टूडियो पे. ओके, तो उसके लिए मैं हेल्प लूंगा पक्का सपोर्ट टीम से. उसको भी अप्रैल गोल में डाल दीजिए. हाँ सही है. राइट. स्पेशली ये जरूरी है यहाँ पर, रिक्वेस्ट फॉर्म्स पेमेंट को. रिक्वेस्ट. सो फॉर्म तो आपने काफी सारे बनाए, नीचे शीट्स बताइए, दिखाइए कौन कौन सी लगाई हैं. और फॉर्म के साथ साथ ना ये फोल्डर्स, जो स्कोप ऑफ वर्क का फोल्डर है, ये फॉर्म नहीं है. ये अगर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट उस फोल्डर पे चला जाता है, कौन से वेरी क्लाइंट का नाइस. क्या स्कोप ऑफ वर्क है, जो सबको एग्जीक्यूशन हो या 2D ड्राइंग हो, 3D डिजाइनिंग हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम हो, तो हर किसी को ये आप डायरेक्टली. ना आप ट्रेनर बन जाइए ऑन हाउ टू ग्रो इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस. इतना ट्रेन हो गया हो. गुड गुड. थैंक यू. ऑसम. तो वैसे ही प्रोडक्ट कैटलॉग्स का भी फोल्डर है, ये फॉर्म नहीं है, ये फोल्डर है. और सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का भी एक फोल्डर है, इसमें सारे प्रोजेक्ट्स का वेरी नाइस. सारा डेटा A to Z प्रोजेक्ट के रिलेटेड, जो साइट इनिशियल साइट मेजरमेंट, साइट फोटोज, इनिशियल साइट फोटोज से लेके अभी क्या चल रहा है, कौन सा क्या, वो सारा डेटा. सिर्फ क्विकली एक सेकंड लूंगा. किसी एक क्लाइंट का पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ फोल्डर्स कैसे ऑर्गेनाइज किए वो दिखा रहा हूँ. Customization list, PDF, 3D views, details from client, site images, selections, presentation, CAD drawings, ये सारे इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है सारे प्रोजेक्ट्स का. राइट. ऑपरेशंस नीचे अगर जाते हैं, ऑपरेशंस वर्कशीट जो क्लाइंट जो टीम को लगते हैं बार बार, जैसे इनिशियल डेटा जो कैप्चर होता है, मैंने कहा था ना, उससे राइट. तो जितनी भी वर्कशीट्स काम की हैं ऑपरेशंस में, वो सारी आपने यहाँ लगा दी है. वो सारे यहाँ पर लगा रखी है. बाकी तो टैब्स उनको भी ढूंढने दिखाइए, की बाकी जरूरत नहीं. टैब्स में क्या क्या डाला है आपने टीम में, क्लाइंट इंक्वायरी में. टीम से रिलेटेड उनके लीव रिक्वेस्ट से लेकर के दिखाइए दिखाइए. पॉलिसीज, सो टारगेट्स हैंडबुक. अचीव में डालें, फिर एसओपी डाल दिया, और दिखाइए नीचे भी. हाँ, टारगेट ऊपर एक अच्छा सा कोट, टीम टारगेट्स. एसओपी बना रखा है हमने, तो वो भी यहाँ पर डाला है. हर किसी को रहता है कहाँ है क्या है डेटा. तो आइडिया इनोवेशन फॉर्म है, लीव रिक्वेस्ट फॉर्म है, हैंडबुक है एक हमारी. ये फॉर्म नहीं है, हैंडबुक है. जब भी कोई नया ज्वाइन करता है तो उसके लिए हार्ड कॉपी भी है ऑफिस में, और यहाँ सॉफ्ट कॉपी है. वर्क फ्लो कैसे होता है हमारे यहाँ पर, सबका थोड़ा अलग अलग हो सकता है. तो हमारे यहाँ पर कैसे होता है, तो नए मेंबर्स को सब यहाँ डेटा रहता है. जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, रेफर अ फ्रेंड, अगर आप देखते हैं टॉप पर, रेफर योर फ्रेंड फॉर अ जॉब ओपनिंग, रेफरल बोनस ऑफ 5,000 रुपीज. ये आइडिया आपको कहाँ से आया? ये आपके फॉर्म से ही, आपके टेम्पलेट से ही, फॉर्म से नहीं, टेम्पलेट से. ऑसम. और गुड गुड गुड. इम्प्लीमेंटेशन क्लास में आपने बोला भी था, तो वो यहाँ पर. फिर ग्रोथ पाथ क्या है टीम के लिए, आगे चलकर क्या बनने वाला है, ऑर्गेनोग्राम बना रखा है हमने सबका, टीम मेंबर से लेके सीपी हेड तक.
एंड कैलेंडर सबको उनको रहता है कि इस साल कहाँ कब कब छुट्टियां हैं, तो वो सब यहाँ पर, और ये टैब्स अभी और फ्यूचर टैब्स है वो यूज हो जाएंगे जल्दी। ऑसम, थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। सेल्स में दिखाइए क्या क्या चीजें डाली हैं आपने। सेल्स में क्लाइंट इंक्वायरी फॉर्म, हमारा प्रोफाइल, हमारा इस पे ये फोल्डर क्लिक खुलता है इससे, उसमें बहुत सारा कुछ डेटा है जो दिखाते हैं हम, प्रेजेंटेशंस, नो अबाउट इंटीरियर डिजाइनिंग इन डिटेल। जो पहले ऐसे होता था सर, जब भी कोई क्लाइंट आते थे ऑफिस में मीटिंग करने के लिए, फर्स्ट मीटिंग हमारा ऑफिस में होता है, तो हमारा बहुत सारा टाइम जाता था इसमें। शुरू से हम ही सब बता रहे हैं, कहीं से कुछ ये फोटो दिखा रहे हैं, कहीं से वो फोटो दिखा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं। तो अभी हमने ये कर रखा है कि एक सेल्स टीम के जो बंदे हैं ना, वो क्लाइंट इंक्वायरी फॉर्म से लेकर के बाद में ये प्रेजेंटेशन दे देते हैं पूरा डिटेल में कि हम वेरी क्या गुड। करते हैं क्या नहीं करते हैं। उसके साथ साथ डिटेल्स, जो क्लाइंट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, हमारे लिए तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन FAQs। हर कोई एफएक्यूज, हर कोई क्लाइंट वही पूछता है। तो इसमें ये सारा ये प्रेजेंटेशन दे देते हैं, इसमें सब एक्सप्लेन कर देती है टीम। अभी टीम भी इतनी माहिर हो गई कि उनको सारा एक एक पॉइंट पता होता है, क्लाइंट्स क्या सवाल पूछते हैं वो पता होता है। और उसके बाद हम मिलते हैं आखिरी में सिर्फ 10 मिनट के लिए। क्या? तब तक वो सारे प्रोजेक्ट देख चुके होते हैं, सब समझ चुके होते हैं कि हम क्या करते हैं, कैसे सिस्टम्स है, वाई एक्सक्लूसिव इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इतने सारे उनके क्वेश्चंस आंसर हो चुके होते हैं। और जब हम जाके मिलते हैं आखिरी में 10 मिनट, तो एक तो फीलिंग उनको भी ऐसे कुछ आता है कि ये सही में कुछ बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो बहुत करते भी हो, बड़े और करते भी करते हो। भी हैं डेफिनेटली। लेकिन पहले जब हम 2-2 घंटे हम बैठ के एक्सप्लेन करते थे ना सर, तो तब थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको भी लगता था कि यार ये बस इनको जरूरत है काम की, ये इतना टाइम दे रहे, पटा रहे, समझा रहे। तो अभी वो सब टीम कर लेती है सारा ऑर्गेनाइज वे में। तो अगर आप देख रहे हैं तो सब कुछ दे रखा है, बैंक डिटेल से लेके सब कुछ। ऑसम, तो ऑसम। ये सब प्रोजेक्ट तो हमारा इसमें टाइम बहुत कम जाता है। हम बस लास्ट के 10 मिनट जाते हैं, सारे साइज के फोटो शूट्स है, यूट्यूब के वीडियोस है, सो तो आई वो थिंक सारा ओवरऑल अगर मैं कर बात देते करूं कि आपने, मतलब लिटरली बोलते हैं ना कि बिजनेस में आपने 4 चांद लगा दिया है ऑटोमेशन के थ्रू। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये सब चीजें आप कोई सॉफ्टवेयर से करते हैं तो कितनी कॉस्ट आपको आ जाती है सारी हैं। चीजें? ERP सॉफ्टवेयर मुझे लग रहा है कि ये 10 लाख से कम तो कुछ नहीं होता, ये मुझे पक्का पता है, और हो भी क्योंकि पाता हमने है या ना खुद। हो पाता? हाँ, मेन वो है कॉस्ट का नहीं। अगर मान लो एक बार हम दे भी देते, तो जितना टाइम हमें उसमें देना पड़ता, और बाद में भी जो ग्लिचेस आते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है आईटी से है, मुझे पता भी है कि उसमें ग्लिचेस आते हैं सपोर्ट के लिए। हर छोटी चीज के लिए जो है ना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करो, उनको एक्सप्लेन करो हमारा प्रोसेस क्या है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये सारा सब कुछ यहाँ इतना इजी टेम्पलेट्स में होता है कि हमें पता है कि हाँ इस बार ये करना है, तो वो सारा हमने बना लिया डेडिकेटेडली। अगर आप, मैं कहूँ कि डेली 2 घंटे दो, तो मे बी 4-6 महीने में ये सारा सारा सिस्टम पूरा सेट हो जाएगा, पर डेडिकेटेडली 2 घंटे देने ही देने। राइट, ऑसम। बट आई एम रियली रियली मोटिवेटेड कि जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारे सॉफ्ट सॉल्यूशंस हैं, जो हमारी सपोर्ट है, उससे ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं कि यू आर scaling from Pune to Pan India. So big congratulations to you. And I'm थैंक यू sure वेरी मच। 10 crore will certainly become 100 crore company. The way you are organizing, the way you are growing your business, where you're focusing on back end and front end आपका naturally grow कर रहा है. So instead of sales, you're focusing on organizing the operations in such a way that naturally more and more clients are coming up, and boom, you're scaling your business big time. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो इसमें ऑपरेशंस में जो है मेरी वाइफ निधि जाजू, वो फ्रंट एंड पूरा देख रही है, तो उनके लिए भी बहुत कुछ ऑर्गेनाइज हो चुका है। एंड Awesome. बैक एंड से सब, जब सारे टीम मेंबर्स को सब कुछ धीरे धीरे जब आदत हो जाती है और सब पता चलता है कि यार ये सब सही तरीके से सही सब कुछ हो रहा है, सारा डेटा ऑर्गेनाइज हो रहा है, सब चीजें, तो इट हेल्प्स अ लॉट। क्लाइंट्स भी खुश होते हैं। So Avijit, what is your message to all the interior designers, all the architects, all the business owners who are in construction industry or contracting or vendor industry? What is your message to them? देखिए, विदाउट ऑटोमेशन
हम एक सर्टन लेवल तक पहुंच सकते हैं। डेफिनेटली हम दिन रात उसमें लगे रहेंगे, सर्टन लेवल तक पहुंच सकते हैं। बट अगर आपको सही में ग्रो करना है बिजनेस और चैन की नींद सोना है एट द सेम टाइम, राइट, तो ऑटोमेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। ऑटोमेशन से जो चीजें सारी आसान होती है और जो ऑर्गेनाइज हो जाती है। ये सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज है, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि अपना सब कुछ ऑर्गेनाइज अगर है तो बाकी सारी चीजें धीरे धीरे जो है वो will fall in place and everything will be happy, everyone will be happy सो in that. जो आपके फ्रेंड थे जिनको आपने बोला था कि छुट्टियों में चलते हैं, दे सेड कि नहीं अभी अभी कुछ टाइम नहीं है, कहाँ कौन सी जगह प्लान कर रहे थे जाने के लिए? गोवा जाने के लिए आज रात में निकलने के लिए प्लान कर रहा था। तो मैंने बोला तो बोला कि नहीं नहीं यार, बहुत काम बहुत पड़ रहा काम है, है। बहुत काम, बहुत मेहनत करनी है। हाँ, तूने तो क्या, तूने सब सेट कर दिया है। मैं भी सोचता हूँ बहुत बार करना है, लेकिन यार इसमें से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। ये वही आ गए कि मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया। निकल नहीं एग्जैक्टली। पा रहे हैं इसलिए तो करना है। ट्रू। ट्रू। Great. Congratulations, Avijit, for getting selected for Achiever Club. You're truly an achiever who has automated, organized, streamlined the unorganized sector, especially your business, which is interior designing and a turnkey, solution provider, construction company as well. And through this automation, through this system, now I can clearly see that from 10 CR to 100 CR is going to be a smooth journey, right? Where you will not work hard, you will work smart. And in this, as they say, that you need to work on the business rather than in the business. And you have truly done that. And again, as they say, that a business is built on three things: people, systems, and strategy. And strategy and people fail if you do not have systems in place. So you have the right systems, and now with that, your team's performance also is getting 3 times better. You have saved more than 10 lakh rupees on IT cost, and now you're focusing on strategy, on sales, on marketing, and your operations are right now sorted. So big kudos and big congratulations to you. You are an inspiration to my community and pan India, all the construction industry business owners as well. Thank you very much, Dolly. Thanks a lot. Your words mean a lot. Thank you. And मैं आपके बारे में बहुत सारे लोगों से बात करते रहता हूँ, और डेफिनेटली मैं रेफरेंसेस भी देता हूँ कि ऐसे ही कोई कोर्स हम ढूंढ रहे थे जिससे ये सारा सब कुछ हो जाए। Awesome. वो आपके थ्रू मिल गया। थैंक यू। Thank you so much. So guys, in next few weeks we shall have another interview with another achiever. Make sure you subscribe to channel, like this video, and share this video with as many friends as you can, because this is the true value, this is the true growth which a business owner can achieve. Till then, keep learning, keep automating, and keep scaling your business.